السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی۔ اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی۔ آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا؟ اے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے۔ نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ؟ مجھے اب دوستی کی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو دارالحسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے سن کے بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سامنا معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، دین پر ڈاکے ڈالنے والے ہر سمت سے حملے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا رشتہ ماضی سے توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ کہیں تخت دار ہے تو کہیں جیلیں، کہیں ہتھکڑیاں، کہیں سازشیں کی جا رہی ہے تو کہیں شرارتیں، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عریانت و فحاشی کے ذریعے سے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی، تو کہیں معیشت اور روزی کا جھانسا دے کر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والے نور آج چاروں طرف سے گر چکا ہے۔ چاروں طرف سے وقت کا دجال اس پر حملہ آور ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ کہیں اصلاح کے زور پر یہ بدماشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا رعب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کی طرف دیکھو، 6.5 لاکھ سے زائد انڈین آرمی مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ چچنیا کی طرف دیکھو، رشیا کی فوج اپنا پنجہ گاڑنے کے لیے ٹینکوں اور طیاروں کے گرج میں حملہ آور ہے۔ فلسطین کی طرف دیکھو، وہاں یہودی اور صہیونی نے مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طرف دیکھو، وہاں وقت کا دجال اتر چکا ہے، وہاں اسلام کا نام و نشان، مولویت کا نام و نشان، علم کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ عراق کے صحراؤں کی طرف دیکھو، نجف کربلا کی طرف دیکھو، فوج کی گاڑیاں چل رہی ہے، فوج کی گاڑیاں چل رہی ہے۔ اسپین کی طرف دیکھو، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی طرف دیکھو، ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی طرف دیکھو، ہمیں جلایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی طرف، ان سب سے بڑھ کر کہ ہمارا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی، ہمارا رشتہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدے کریں، ہم نیو یارک کو سجدے کریں، ہم کس کو اپنا قبیلہ بنائے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو، تو ہمیں ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں۔
लिहाजा दुश्मन इस्लाम के पीठ में मरोड़ पड़ी है। इन उलमा को देखकर, इन मदारिस को देखकर याद रखना, तुम तो इस गलतफहमी में हो कि हम खुदा ना खास्ता नबी का दीन छोड़ देंगे। तुम तो इस गलतफहमी में हो कि हम खुदा ना खास्ता अल्लाह का कुरान छोड़ देंगे। तुम तो इस गलतफहमी में हो कि हम खुदा ना खास्ता नबी का इस्लाम छोड़ देंगे। आओ इस महफिल में बैठकर देखेंगे, हमने नबी के अल्फाज भी नहीं छोड़े, हमने नबी का अंदाज़ो लेजा भी नहीं छोड़ा, हमने नबी का अंदाज़ो लेजा भी नहीं छोड़ा। हमारे नबी ने हदीस पढ़ाते वक्त सहाबी को ज़मज़म पिलाया था। उन्होंने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते वक्त ज़मज़म पिलाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते वक्त ज़मज़म पिलाया। हमने नबी की अदाओं को महफूज रखा, हमने नबी के अल्फाज को महफूज रखा, हमने नबी के अल्फाज को महफूज रखा। अपने माँ बाप का नाम ना जानने वालों, आओ हम तुम्हें हदीस के 50,000 रावियों के नाम बताएंगे, उनके हालात बताएंगे, उनकी जिंदगी बताएंगे, उनकी सुबह शाम बताएंगे। तुम्हें तो अपने माँ बाप का नाम भी मालूम ना होगा। ए यूरोप के दरिंदों, अपनी तरक्की पर फख्र करने वालों, आओ देखो इन दीनी मदारिस में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं तक महफूज हो चुकी है। वो कोई और नस्ल होगी जो तुम्हारी शक्ल देखकर फरेफ्ता हो गई। हमें तो तुम कुत्ते और सुअरों से ज्यादा बदसूरत नजर आते हो। हम तुम्हें तरक्की के किसी अन्य दर्जे पर भी नहीं समझते और तुम हमसे मुतालबा करते हो कि मौलवी अपनी शक्ल बदल दे। हाय, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल बदली जा सकती है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बदला जा सकता है। जहां मेरे नबी का इज़ार था, देख लो इन उलमा की शलवार वहीं तक है। तुम्हारी पैंट कभी तंग होती है, कभी टाइट होती है, कभी खुल जाती है, कभी उतारते हो, कभी पहनते हो, मगर हमारे नबी जिस जगह हमारे कपड़े छोड़कर गए वही है। नबी सर पर जो कुछ लेकर गए उस सर पर कोई चीज सवार नहीं हो सकती। वही नबी की शलवार, वही नबी की टोपी। तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारी दुनियावी ताकत और धमकियों को पीछे हटा देंगे? तुम ये समझते हो कि तुम्हारी रिस्क की वजह से हम तुम्हारे पीछे बढ़ेंगे? तो याद रखना, रब ने रोजी सुभान अल्लाह के कलमे में रखी, रब ने रोजी नबी के कदमों में रखी। और अगर नबी के कदमों में हमें रोटी ना मिली तो तुम रोटियां तो कम कर सकते हो, वो पत्थर कम नहीं कर सकते जो नबी ने अपने पेट पर बांधा और वक्त का आलिम अपने पेट पर बांधने को तैयार है। कहां से इन पत्थरों को कम करोगे? जिन लोगों की रात नाइट क्लबों में गुजरती है उन्हें परेशान करोगे, जिन लोगों को चटाई पर रोना है उन पर तुम्हारी बातें कहां से असरअंदाज होगी? याद रखो, ये चटाई पर रोने वाले और वक्त गुजारने वाले वो लोग हैं कि जब इस्लाम पर हमले होंगे तो ये खड़े होकर हिफाजत करेंगे, कभी मुसल्ले पर, कभी मिंबर पर, कभी महराब पर, कभी मनाजिर के स्टेजों पर, कभी जलसे आम में, कभी महफिलों में, कभी मजलिसों में यही हजरात नजर आएंगे। सुन लो, हमारी नबी की वफात पर खुशियां मनाने वालों, तुम्हें नबी हर कदम पर जिंदा नजर आएंगे, हर काम में जिंदा नजर आएंगे, हर जगह जिंदा नजर आएंगे। तुम्हें कहीं हम मायूस नहीं होने देंगे। आओ जिस मैदान में चैलेंज करते हो, तुम्हें अपने लिखने पर फख्र है लेकिन तुम हमारे उलमा जैसे मुसन्निफ पैदा नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी अकल पर नाज है मगर तुम वो हाफिज़ कुरान और शेखुल हदीस पैदा नहीं कर सकते जिनको लाखों हदीस याद हो। तुम अपनी हिस्ट्री भूल जाते हो, तुम तो नौकरी का वक्त भूल जाते हो, तुम्हें तो रात की सोने की गोलियां खानी पड़ती है, तुम्हें तो माँ और बीवी का फर्क मालूम नहीं होता। तुम किस मुंह से इस्लाम को चैलेंज करते हो? तुमने जिस मैदान में भी उलमा को चैलेंज किया, इन उलमा ने इसका जवाब दिया। सियासत में तुम फेल हो चुके हो, इक़्तिसाद में तुम फेल हो चुके हो, अब तुम्हारी मौत का वक्त अफगानिस्तान और इराक में आ चुका है। तुमने समझा था कि हम अपनी औरतें नंगी करके लाएंगे तो ये कौम छूट जाएगा, उन्हें हया दिलाने वाला मौजूद है। तुमने समझा था कि भूख और फाकों के डर से उन्हें कपकपाएंगे। उन्हें माँ आयशा के उजरे की वो रातें याद है कि 4 दिन तक खाने की कोई चीज नहीं हुआ करते थे। तुम ये समझते हो कि हम अपनी दुनियावी ताकत और धमकियों के रोग पीछे हटा देंगे, मगर ये तो ताइफ के पत्थरों को नहीं भूले, ये तो बद्र की मैदान की जुर्रत को नहीं भूले, ये तो अबू जुनादा की चाल को नहीं भूले। आलिम को देखकर पीठ में मरोड़ इसलिए उठती है कि आलिम माजी याद दिला देता है, वो बीमारों का हल बता देता है। इसलिए एक आलिम जमीन पर ऐसा चमकता है जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं। उनको सलाम करने के लिए फरिश्ते जोक दर जोक करते हैं।
अपने बेटों को स्कूलों में डालने वाले, खुदा की कसम अगर तुम्हें किसी तालिबे इल्म की अज़मत का पता चल जाता, तुम्हें किसी हाफिज़ कुरान की अज़मत का पता चल जाता, तो तुम स्कूल के काले दरवाजे पर नहीं आते, तुम मदरसे के दरवाजे पर आकर पड़ जाते। सहाबा एक एक हदीस के लिए हजारों सैकड़ों मीलों का सफर करते थे, महीनों का सफर करते थे। उनको पता था कि ये इल्म जिंदा है तो दीन जिंदा है, और जब इल्म मिट जाएगा तो दीन मिट जाएगा, और जब दीन मिट जाएगा तो अल्लाह इस जमीन को बर्बाद कर देगा, इसको तबाह कर देगा। इस दिन और दुनिया को कायम रखने वाली चीज सिर्फ कुरान है, सुन्नत का इल्म है, किताब का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है। इन उलूम की बरकत है जिसकी वजह से बारिश बरस रही है, इन उलूम की बरकत है कि गल्ला जमीन से निकल रहा है। खुदा की कसम जब उलमा खत्म हो जाएंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरबराह बना लेंगे, तो अल्लाह आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा और जमीन पर रहने वालों को कुत्ते और सूअर की शक्ल में बदल देगा। इसलिए कि जिना आम हो जाएगा, गाने बजाने आम हो गए। दुनिया वालों इन उलमा को खत्म नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अगर ये खत्म हो गए तो तुम भी इस दुनिया में नहीं रह सकोगे। अलगर्ज आम लोगों को क्या पता कि कुरान क्या है, वो गिलाफ में बंद करके चूम कर ऊपर रखने वालों को क्या पता कि रब सूरह फातिहा में क्या कहता है, सूरह बकरा में क्या कहता है, पता ही नहीं। नबी क्या फरमा कर चले गए, बुखारी तिरमिज़ी सहस्ता क्या है मालूम नहीं। आज के मुसलमानों की जिंदगी न हराम का पता न हलाल का पता, अताउल्लाह के गाने सारे झूम झूम कर सुनते हैं, मगर ये नहीं देखते कि आसमान से किस वक्त कैसा अज़ाब नाजिल हो रहा है और कुरान की महफिलें सुनी छोड़ दी जाती है। आज चारों तरफ चंद डाकुओं में चंद हाफिज खड़े रहते हैं जिनके पास कुरान का इल्म होता है, जिनके पास सुन्नतों का इल्म होता है। उन पर नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उन्होंने नौकरियों को पांव की ठोकरों में रखा, अपने सर पर बोझ लाद लाद कर जवान हुआ। उन्होंने रातों को जाग जाग कर अपनी जवानी को बुढ़ा दिया, मगर अपने रब का एक हर्फ ज़ाये होने ना दिया, अलिफ तक ज़ाये होने ना दिया। आज चंद लोग खड़े होकर कुरान के गलत नुस्खे को छाप दिए, मगर हमारे एक आलिम पानी ने खड़े होकर चैलेंज कर दिया और कुरान के अल्फाज को ठीक कर दिया। ये रातों को जागने वाले लोग थे, ये नाचने वाले लोग नहीं थे, ये कुरान की हिफाजत करने वाले लोग थे। मुसलमानों, अगर तुमने इन उलमा की कदर ना की, इन उलमा की हिफाजत ना की, इन उलमा के साथ हाथ ना मिलाए तो तुम भी बर्बाद कर दिए जाओगे। आज चंद लोग खड़े होकर इल्म की शान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम इल्म की शान को समझो वरना जहाद फसाद बच जाएगा। यह इल्म है जिसने तसव्वुफ को रब तक पहुंचाने का जरिया बना दिया। दीन का शोबा इल्म से खाली हो जाएगा, कुफ्र की आमाज का बनता चला जाएगा, कुफ्रों का जरिया बनता ही चला जाएगा। इसलिए उठो, अपने बच्चों को स्कूलों में डालकर उनको नबी का कायदा पढ़ाने के लिए बैठाओ। देखो तो आसमान पर ऐलान हो रहा है, मेरे फलाह बंदे का नाम जहन्नम के फेरिस्त से काट कर जन्नत के फेरिस्त में लिख दो। इसलिए कि वो इल्म की शाहराह पर चल पड़ा है, जिस शाहराह पर गिरने वाली स्याही आसमान पर दूर बनकर चमकती है। मैं इसी चंद बातों पर अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।